Piyush, Sudhanshu, Mausami, Swati, Shivani, Gautami. Okay, fine. Let's. क्या हुआ मिस परिदा आपका सर दर्द कर रहा है. Let's start the third marketing mix variable. Okay. We have discussed two marketing mix variables. What are these two marketing mix variables? Product and price. Product and price. Product and price. With respect to value, what is product? You are doing what to the product? Value. What to the value? You are Creating a value. very good. You are creating a value. Thanks, Avik. Okay. Product is about creating that value. Okay. And price was about. Generate revenue. In terms of value, Swati. In terms of value, what are you doing? Price was about Pricing that value. Pricing that value or charging the value. Charging the value from customers or consumers. Yes. Yeah. Place is about. Where we look at the With respect to value, Where we can get the value. Make the value available. Available or deliver that value, right? So understand what is happening. Okay. The place is about delivering that value and making that value available. That's Sunit and Avik are talking about. Okay. Which is also called distribution. दो एस्पेक्ट होते हैं वैल्यू को अवेलेबल कराने के. बेसिकली जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इसके दो हिस्से हैं. ठीक है. एक है बैक एंड का हिस्सा. ओके. सो वहां तक पहुंचाने में क्या क्या करना पड़ता है. व्हाट इज दैट कॉल्ड दैट supply chain. No, supply chain is a distribution. Correct, Ashish. Supply chain is a tool to make that distribution happen. और supply chain कई जगह यूज हो सकता है, पर distribution में भी यूज होता है. But that is called the value distribution और channel management. ठीक है. Channel management बहुत important होता है. केसों में बहुत jobs आती हैं distribution में. That is my forte or an area also. There is a course on it. Sales and distribution management in second year elective. अगर तुम लोग पहुंचे सेकेंड ईयर तक और अगर मैंने वो पढ़ाया तो वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. MM2 में आई विल नॉट टच अ लॉट ऑन इट. एक तो टाइम नहीं होता है क्योंकि आई हैव टू कवर सो मच एंड आल्सो बिकॉज आई बिलीव दैट some of you will eventually end up taking that course and we will discuss it in detail. That's the back end part. Then there is the front end part of place. This channel. What is that front end part? And front end to whom? Retail customers. The retail customers or the retail customers are also called Retailers. No. Customers, retail customers. What is it? Consumers. Specific customers are these specific customers. Who are these specific customers? Okay, who is a retailer? Okay, so this retail management is what we will focus on. Who is this retailer? कौन है ये retailer? Sir, maybe a shop owner. You don't need to own a shop. हाँ, So the one who you don't need to directly own a shop. sells. So the one who directly sells to customer. The final Which customer. Final Direct customer. Which final customer? Final customer. What is this final customer called? Consumer. Who consume the That product. is the word I was looking for. So retailer is a business being, or retail is a business where majority of your revenue comes by selling to selling to Final consumer. end consumer. Okay, always remember that. Okay, always remember that. Name a few retailers. Big Bazaar. Big Bazaar. Fair enough. The Reliance Fresh. Reliance Fresh. Any local grocery shop. अभी आत्माराम को कौन याद करेगा? आत्माराम. वही तो बोल रहा हूँ sir. Any local grocery. Correct. Who is Atmaram bhai? Who is Atmaram? Small retailer. Okay, small retailer who will fulfill all your requirements, product requirements when you come to KSOM, if and when you come to KSOM. Okay. Right. So the small retailers, the Kirana stores, so lots of retail outlets. Okay.
So these are all examples of retail management, retailers. What else? Anything else? Okay. Are you guys retailers? Are you guys retailers? Sorry. Oh, what am I saying? Are you guys consumers? Yes, sir. Yes, sir. Buyer. Yes, When you buy what? When you buy what? You become a consumer. Ha, Chandita. When are you a consumer? When you consume. Chandita. sir, Chandita. when we buy something from market, like groceries, Okay. Like groceries. Okay. Fine. Like groceries, like chocolate. What else? Or? Okay. Daily commodities. Daily commodities. Fine. Okay. Let me ask this question. Fine. Arpan, when you buy pedigree, are you a consumer or not a consumer? Yes, sir. After all, I have to buy. My dog will not go and buy. But I'm the consumer. I'm buying that. I'm paying for it. Why are you a consumer? Why are you a consumer? What's this definition? Bolo, bolo. Because I'm in need of that product or service. Correct. So a business can also buy, right? What defines a consumer? Yeah, Gautami, what defines a consumer? Sir, because I'm not going to resell it. I'm consuming for myself. Very good. When a purchase, very good, Gautami. When a purchase is made for personal non-business use, you are a consumer. Okay. And it does not mean that you have to necessarily physically consume it. Okay. So when a mother or a father buys diapers for a child, still they are consumers because it is bought for personal non-business use. Any doubts around it? Okay. Yes or no? No. Okay. Fine. Indian retail system. India में retailers कैसे होते हैं? What's the retail scenario like? Unorganized. What is unorganized? Okay, so Avik is saying unorganized. Okay, so there is because Avik has brought this term. Let's discuss on that also. There is something called organized retail. Okay, something called organized retail. What is this organized retail? What is this organized retail? Those companies which are registered under Companies Act and they Sell their products. And they have got license to sell those products. Food license. License तो आत्माराम के पास भी हो सकता है. But not all that. Yes. So what you are mentioning is a necessary condition to become an organized retail. कि registered होना चाहिए, tax देना चाहिए, सारे laws follow करने हैं, जो अभिलाष और अविक बोल रहे हैं. But what else? What is organized? What in their business process is organized? Why organized retail? Example of organized retail. उसके पहले example of organized retail. Reliance Fresh, Kmart. The Big Bazaar. Spencer's. Big Bazaar. Big Bazaar, Reliance Fresh. IKEA, correct, Piyush. That's a good example. IKEA. These are all organized retail. Okay, these are all organized retail. Reliance Trends, Will's Lifestyle. Okay, Walmart. These are all organized. Aditya? Walmart. Sir, Walmart. Walmart in India, I think, is still not a retailer, but globally, yes, Aditya. Globally, yes. Okay, Walmart is also organized retail. What is organized? Why organized retail? What is organized? The fixed location they sell. so they have a specific layout. Okay, fair enough. Very good, Aritra. Aritro, right? I always check. Aritra, sir. I'm a girl. Aritra. I don't know. So yeah, I know that you are a girl, but I'm saying that the pronunciation Aritra. Fair enough. Okay, Aritra. She's saying the layout is organized. Okay, layout is organized. So there's a lot of processes on the consumer side which is organized that Aritra is talking about. Okay, layout, display. What else? What else do you see on the consumer side which is organized? What else do you see? Aritra has made a variation. Product Pricing. variation. Okay, Ronit. Pricing is organized. Fair enough. What else is organized? Sir, positioning is organized. Positioning. हाँ, so display, merchandising, उसके बारे में हम बहुत बात करेंगे. जो रित्रा ने कहा है, उसके बारे में काफी बात करेंगे हम. हाँ, what else? So they have targeted customer. Very nice, Aditya. Okay, their positioning, etc., is or targeting is much more organized, defined. Availability.
availability is organized, so stocks क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, product portfolio, all that is organized. Their marketing communication is much more organized. Okay, कि कैसे बात करेंगे consumer से and all that. Promotion is organized. Okay. At the back end, what all is organized? At the back end, Ashish. हाँ, Nirvik, I'll come to you. Let Ashish finish. हाँ, Ashish. Management, sir. हाँ, what management? सभी तो management है. What management? So marketing management. Sir, the organized. Marketing management too is organized. That is true, but Sir. at the back end, as a retailer, which processes are organized? Distribution. Long-term planning. Sir, supply Yes, sir. chain. Supply. The Getting the supply supply. chain. हाँ, Yes. the distribution, correct, Simran. Supply chain, warehousing, stock keeping, inventory management. वो software पे billing हो रही है, right? So a lot of those things are organized at the back end. Okay. Customer service, HR policies are organized. Tax, Abhilash बोल रहा था, right? So finance, etc. is organized. So a lot of things are organized. So Big Bazaar, Reliance Fresh, JioMart, etc. These are all examples of organized retail. Indian scenario में more, हाँ, Nirvik तुम कुछ बोल रहे थे. Sorry, go ahead. But they are also regulated by government and employment terms. Very good. The HR policies, the people policies are organized and structured. So provident fund katta hai, incentive plan well designed hota hai. So everything is formalized and organized. Good point, Nirvik. Okay. So training वगैरह होगी, sales team की, incentive planning better होगी, a lot of things, right? Salary component well defined होगा, structured होगा. So those things, okay. Indian scenario में major retailers are organized or unorganized? Unorganized, sir. Unorganized. Unorganized. So the ratio कितना भी तुम्हें बिग बाजार वगैरह दिख जाए, अधिकतर बिजनेस अभी भी आत्माराम के थ्रू ही हो रहा है इंडिया में आज की डेट में, ठीक है? So always remember that this ratio of organized to unorganized will vary. That ratio can vary depending on different sectors. Okay? किस सेक्टर में organized बहुत कम है, unorganized बहुत ज्यादा है, इन सेक्टर्स में let's say. Sir, FMCG, FMCG grocery में mostly it is unorganized. Most of it is unorganized, right? Organized is very limited. और कहाँ है? So for example, cigarette, okay? Hardly you will see any cigarette में organized players, okay? Majority of it is unorganized. So your pan shops and betel shops and all that, okay? किस कैटेगरी में organized का ratio ज़्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से? किन कैटेगरी में organized? Electric. In automobile Ashish, sector. but electronics, a lot in electronics. The automobile sector. Sir, automobile. Automobile is a brilliant example, Sunita and Avik. It is 100% organized. Why? Right? You see these retail outlets, right? Automobile mein. Do you see any unorganized player there? No. It is 100% organized. Why is it organized? 100% organized. Prices are very high. Price. Yes, sir. Prices are high. Quantity. Say per unit cost is more, sir. Per unit cost is more. Per unit price is more, and what is less? Technicality of creating Good point, Aliva. I really like your point. Okay, that the product is very technical, and hence anybody can't sell, and hence you need people who are professional and organized. And also selling it requires, क्योंकि product महंगा है, it also requires a lot of money. Marketing. Customized. capital and Aftermarket service, sir. so there is an after sales service also, which is again requires a lot of organized professional approach. Right. Retailer के केस में ऋषभ R&D नहीं है, retailer के केस में नहीं है. टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जो अलीवा बोल रही थी. R&D रिटेलर नहीं करता, ठीक है? R&D रिटेलर नहीं करता. Legalization. हाँ अर्पण, Sir, legalization. It should be legal. So हाँ, so regulations बहुत stringent होंगे, क्योंकि I think अभी कह रहा था वो बात, फिर बात दब गई. Frequency of purchase is very less. Heavy item, expensive item, frequency of purchase is less. Number of transactions are Less, sir. much lesser. And number of retailers are also much lesser compared to Less. FMCG and others. correct. So you can regulate and control, and it has to be organized. So you need to understand कहाँ पर क्या होता है. हाँ बोल. Margin will not be higher, Can't sir. say like that, Bhaskar. अगली क्लास में या अगली की अगली क्लास में I will try to give you an idea
अगेन मार्जिन फॉर whom, retailer or the brand? ब्रांड के मार्जिन मुझे नहीं पता ऑटोमोबाइल में, क्योंकि ब्रांड के मार्जिन पता करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है. आई डोंट नो. You can research and tell me. Actually, you can research and tell me, and we will all learn from you. But retailer margin पे I'll give you a perspective. Not today कि मार्जिन कम होता है, ज्यादा होता है, and more importantly क्यों ऐसा है. ठीक है? I'll try and give you a perspective on that. अगर मैं भूल जाऊँ अगली क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में. Sir, in automobile there is more customized rather than the. तो more customization होता है नहीं होता है? होता है sir, more customized. Automobile is relatively homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous. Homogeneous. In the sense brand to brand variants, brand to brand, model to model comparison करना easy है मुश्किल है? Easy है. बिल्कुल comparable है ना. So जो भास्कर पूछ रहा रिटेलर मार्जिन, वो कहानी वहीं से बन के आएगी. ठीक है? I'll tell you कि okay, so just to give a heads up, रिटेलर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है भास्कर, परसेंटेज के टर्म्स में. एब्सोल्यूट मनी नहीं बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज के टर्म्स में. और होमोजेनिटी हैज अ रोल टू प्ले. एनीवेज, ओके. सो ये सब है. मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी दे रखी हैं. डू सर फार्मास्यूटिकल्स सर ऑर्गेनाइज्ड होगा या अनऑर्गेनाइज्ड? गुड पॉइंट. फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है? फार्मेसीज अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं अलीवा, बट स्टिल रेगुलेशन जो अर्पण बोल रहा था, लीगैलिटी रेगुलेशन इज फेयरली हाई, क्योंकि दवा बेच रहे हैं, लाइसेंस बहुत कंट्रोल करके दिया जाता है. दवा और दारू बिना लाइसेंस के बेचना इम्पॉसिबल है, सो रेगुलेटेड है. बट स्टिल अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन द सेंस you will find a lot of local players. ठीक है? Lot of local single outlet. However, the extent of organized retail ratio is increasing very fast with your pharmacies and netmeds and a lot of those players coming in. Okay, so a lot of organization is happening of late. Am I clear, Aliva? Does it make sense? Yes, sir. Okay. ठीक है? हालांकि मैं स्लाइड नहीं दिखाना पसंद करता, मैं जल्दी से देख लो. सो द ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स, योर हार्ट्स, मेलास, मंडीज एटसेट्रा, यू हैव सीन, राइट? हार्ट्स, मेलास, मंडीज एंड ऑल. एनीबॉडी हु हैज नॉट सीन, यू अंडरस्टैंड? यस, नो, पता नहीं, देखा नहीं देखा? सर देखे हैं. देखा है. हाँ, बहुत बढ़िया. किराना शॉप, कन्वीनियंस स्टोर्स आर मोर और लेस व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज, एंड द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स e-commerce, online retail and organized retail. The trend is towards that. We'll quickly look at a few pictures. This is an example of a hut. You see it in cities also, huh? It's not a rural phenomenon, it's an urban phenomenon also in India. Okay, this is a typical grocery store. किराना स्टोर. Yes. किराना स्टोर. ठीक है? ग्रोसरी स्टोर और किराना स्टोर, टिपिकल आत्माराम शॉप. What strikes you when you see this? What strikes you? क्या सबसे बड़ा दिक्कत है उसके लिए? Variety. क्या उसकी क्या कंस्ट्रेंट है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन. क्यों, क्या दिक्कत है उसको ऐश्वर्या? क्या दिक्कत है उसको? क्या चीज नहीं है उसके पास? बहुत बढ़िया शुभदीप. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके पास, क्या नहीं है उसके पास? Storage. ऑलवेज रिमेम्बर, रिटेल में दो कंस्ट्रेंट होते हैं रिटेलर के. दो कहानियां है रिटेलर की. पहला, उसके पास कंस्ट्रेंट क्या है? बड़ा कंस्ट्रेंट Storage. स्पेस. शुभदीप ने बोला Space and capital. एंड दूसरा कैपिटल. हमेशा याद. ठीक है? स्पेस वाली कहानी सब जगह शायद ना हो. जहां पर प्रोडक्ट छोटा है या वेरिएंट्स कम है, वहां शायद स्पेस की कहानी ना हो. बट मोस्ट रिटेल आउटलेट्स में स्पेस इज अ बिग कंस्ट्रेंट एंड कैपिटल इज अ कंस्ट्रेंट. पूरी कहानी रिटेल की इन दो चीजों पे, पूरा बिजनेस मॉडल इन दोनों चीजों पे बेस्ड होता है. ठीक है? अगेन, सो व्हाट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब स्पेस नहीं है, वेरिएंट्स बहुत ज्यादा रखने हैं. व्हाट कैन दे नॉट डू इफ यू लुक एट दिस स्टोर? क्या नहीं कर सकते हैं? पोजीशनिंग नहीं कर सकते. वेरिएंट मुश्किल है रखना. एक भी साबुन दुकान में रखने से पहले 100 बार सोचना है कि भाई ये दुकान में रखेंगे तो कहाँ रखेंगे. ठीक है? द अदर व्हाट कैन दे नॉट डू इज अ लॉट ऑफ जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में पॉसिबल होता है, a lot of
डिस्प्ले, विजिबिलिटी देना बड़ा मुश्किल होता है कन्वेंशनल स्टोर्स में, ठीक है? एनी क्वेश्चन? दिस इज अ Organized store. organized retail, a typical hypermarket. We all have been there, we all have seen it. These are few other examples, international examples. Okay, we will talk about classifying. Okay, we will talk about classifying these retail outlets. जैसे हमने product classification किए थे, हमने जैसे हम retail classification भी करेंगे. Okay, पहला broad classification होता है store based outlets और non store based outlets, ठीक है? Somebody was saying retailer वो होता है जिसके पास shop होती है. मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, retailer होने के लिए shop होना जरूरी नहीं है. You can be a retailer without having a physical shop. Okay, because retailing की क्या definition है? I think गौतमी ने बताया था. Somebody who personal but without personal, business. Commercial sells purpose. to the end consumer. Sells to the end consumer is a retailer. Always remember who sells to the end consumer. Okay, जिसका धंधा, जिसका business वहां से आता है, ठीक है? So store based retailers होते हैं, non store based retailers होते हैं. Store based retailers को दो हिस्सों में, दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन होता है कि what kind of products they have and what is the kind of store they have, format क्या है, ठीक है? इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मतलब वो है मर्चेंडाइज ऑफर्ड के बेसिस पे वो लिस्ट बनाई है. कन्वीनियंस आउटलेट्स, ये क्या आउटलेट्स हैं? So nearby shops, easy availability. Very good, Aditi. Nearby shops, easy availability. The biggest convenience that they are offering you is the biggest Even convenience. open for long hours. No. Availability. Accessibility के दो फैक्टर्स हो सकते हैं. सुनिए, एक्सेसिबिलिटी के दो फैक्टर, एक तो प्लेस बगल में है और दूसरा जो तुम कह रहे हो टाइम, जब चाहो अवेलेबल. एक्सेसिबिलिटी के दो हैं, प्लेस और टाइम, ठीक है? सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट बोथ. सो कन्वीनियंस प्लेस का, कन्वीनियंस टाइम का, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी इज अ गुड वर्ड व्हिच आई विल यूज. योर आत्माराम इज अ कन्वीनियंस स्टोर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? सुपरमार्केट्स ये कौन से आउटलेट्स हैं? So Large Reliance. हाँ, what merchandise are they stocking? Sneha, what merchandise do supermarkets stock? Sneha? Yes, sir. What merchandise do supermarkets stock primarily? What kind of merchandise do they stock? सुपरमार्केट का एग्जांपल दीजिए. Big bazaar. Big bazaar. What kind of merchandise do they offer, stock? Wholesaler. Wholesaler. What kind of merchandise? क्या प्रोडक्ट स्टॉक करते हैं? Food, groceries. फूड, ग्रोसरी. ओके, ठीक है? सो सुपरमार्केट वो होते हैं जिनका मेजर बिजनेस किससे आता है? मेजर बिजनेस किस मर्चेंडाइज से आता है? ग्रोसरी एंड स्टेपल से, ठीक है? Household consumption. So Spencer is an example of a supermarket, right? और Reliance Fresh is an example of a supermarket, ठीक है? Organized retail बड़ा आउटलेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेजर मर्चेंडाइजेस अराउंड स्टेपल्स एंड हाउसहोल्ड आइटम्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या है स्लाइड में सुपरमार्केट के बाद? हाइपरमार्केट. Okay, क्या होता है hypermarket industry? These are stores which are a combination of like department store and grocery supermarket. Grocery हाँ. और departmental दोनों रहता है. Basically the format is very, the layout is very, the store size is very, So big, large size. Hypermarkets are supposed to be the largest retail stores, ठीक है? और बहुत अच्छा पीयूष और रितेश ने बोला कि they have the grocery section also and other departments also. So they are a combination of kind of supermarket and departmental stores. बहुत बड़े large store formats होते हैं ये hypermarkets. Example of hypermarkets. So big bazaar. It sells. Some of the big bazaars, not all. Some of the big bazaars which have Walmart. a lot of departments and categories. So Metro Cash and Carry. D-Mart or V-Mart, Sharda?
DMart, I haven't been, but I whatever I have heard, DMart is a hypermarket. I haven't been there. I don't know. I haven't read up also on enough on DMart, but yes, DMart could be a hypermarket. Vishal Mega Mart. हाँ ऐश्वर्या. Metro Cash and Carry. Vishal Mega I'll come Mart. to you अभी. कौन सा ऐश्वर्या? Vishal. विशाल मेगा मार्ट, हाँ some of them, but विशाल मेगा मार्ट में सुपरमार्केट वाला पार्ट होता है क्या? ग्रोसरी वाला पार्ट होता है क्या? हाँ कुछ में होता है. कुछ में होता है. रिलायंस सुपर, स्पेंसर, अगर कैलकाटा में किसी ने साउथ सिटी मॉल देखा है, दैट्स अ हाइपरमार्केट, वेरी लार्ज स्टोर फॉर्मेट. Yes sir. हाँ, I'll come back to what Avik was saying, that Metro Cash and Carry is a hypermarket, and Rishabh has responded to it. That Metro Cash and Carry is not a. Rishabh, बताओ. Metro Cash and Carry is not a. Sir, it's not. It's a supermarket, but it's not a hypermarket. A Metro Wholesale is a hypermarket. Metro Cash and Carry is not a. So that wholesaler. Metro Cash is not a. It's not a retail market. Retail market. It is not a retailer. It's not. Metro Cash and Carry is not a Retailers buy retailer. from there. Retailers buy from Because there. it does not sell to. Because it does not sell to. The final customer. Final Final consumer. Consumers. Metro Cash and Carry is a जो रिटेलर को बेचता है उसे क्या बोलते हैं? Wholesaler. मेट्रो कैश एंड कैरी इज नॉट अ रिटेलर. अभी किसी ने मैंने तब रिस्पॉन्ड नहीं किया था. आशीष या somebody was talking about Walmart. Okay, I said Walmart. अनिर्बान या आदित्य, पता नहीं किसी ने तो बोला था Walmart. Walmart is not a retailer in India. उन्होंने रिटेल आउटलेट अभी तक नहीं खोला है. उन्होंने भारती वालों के साथ टाई अप किया है. So there is something called a Bharti Walmart, but they don't sell to end consumer. Bharti Walmart is again a Wholesaler. Wholesale. Because they sell to retailers. They don't sell to end consumer. So understand the business. Does it answer your question, Avik? Yes sir, totally. So hypermarket के बहुत सारे. हाँ भास्कर, क्या पूछ? मैं सोच रहा था कि कोई तो पूछे. भास्कर का बहुत ही उम्दा सवाल है. मैंने सोचा कि पूछेगा कि आज सरस्वती पूजा या कल है. Flipkart is a retailer or a wholesaler? Retailer sir. Retailer. If the end consumer is buying, then it is retailer. Okay, let me give you this data कि mostly end consumers buy. Okay, 99% जो धंधा आता है consumers खरीदते हैं Flipkart पे. Now tell me, Flipkart is a retailer or not a retailer? Retailer, sir. Retailer, sir. So Flipkart and Amazon, they are a platform. They are a medium through which they buy through retailers. Very good, Shreya. To be a retailer, what do you have to do? Let's go back to the definition जो Itishree और Gautami और अविक सब बोल रहे थे starting में. What do you have to do to be a retailer? They are reselling. You have to sell to the end consumer. Okay? And to sell to the end consumer, what do you have to do first? First, we have to keep the inventory. We have to buy first. Purchase the product. You have to buy. You have to buy. Is Flipkart and Amazon supposed to buy it? Do they buy it? No, Business sir. model क्या है? It's a platform. No, It's a sir. platform. So are they buying and reselling? सर Cloudtail और Apparel जो है सर वो तो बहुत बढ़िया निर्माण. Amazon is a platform जो श्रिया ने कहा. Amazon never buys and sells. But who buys? Who sells on Amazon? जो श्रिया कहना चाह रही थी. Who sells on Amazon? Retailers. So there are different retailers who sell on Amazon. There are different retailers who sell on Amazon. They are retailers because what are they doing? They are Selling. they are product on the Amazon. What are they doing? They are They first are using the platform. correct. They're But to first sell, what are they purchasing- doing? They are purchasing the परचेजिंग. बड़ा अंतर है इस चीज में जब आप खरीदते हैं और फिर बेचते हैं. ठीक है.
एज कंपेयर टू यू बी एन इंटरमीडियरी और आप दो पार्टी को मिलाते हैं। जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तब आप क्या कर रहे हैं धंधे में? व्हाट आर यू डूइंग इन द बिजनेस? यू आर Investment. very good, Sadeep. You are investing in the business. You are investing your capital in The business. Purchasing. What are you carrying? What are you Purchasing the carrying? stocks. Purchasing the stocks. Inventory stock. Inventory. Yes, sir. Inventory में पैसा डाल रहे हैं. What are you sharing with the brand or the manufacturer? What are you sharing with that brand and manufacturer? Profit. Sharing. And why are you sharing the profit? Because you're sharing their Products. sharing their Products. sharing their Name. Goodwill. Brand. Customers. Value. profit क्यों मिल रहा है? You're sharing their revenue. Value. Value. sharing their risk. You're sharing risk. धंधे में पैसा डाल रहे हैं और शेयरिंग रिस्क। कल को माल नहीं बिका तो किसकी ओनरशिप होगी? किसके पास इन्वेंट्री फंस जाएगी? मेरे पास। Retailer के पास। ठीक है। Amazon and all कोई रिटेलर नहीं है। They can't retail. Okay. But what have they done? So Anirban बोल रहा था they have created subsidiaries. क्या subsidiary create करी Amazon ने? Cloudtail FREO. Cloudtail कभी देखा है जब तुम लोग खरीदते हो Amazon पे there is a Cloudtail Private Limited और कुछ ऐसा होता है? देखा है? देखा है। इतनी शॉपिंग तो करते हो कभी? हाँ। Cloudtail क्या है? Cloudtail क्या है? is a क्या आंख मूंद के शॉपिंग करते हो क्या? रिटेलर है सर। हाँ रिटेलर है। क्यों रिटेलर है अनिर्बान? Cloudtail क्यों रिटेलर है? Because it purchases from the other Ownership company. And stock it. परचेज करता है, स्टॉक करता है और फिर बेचता है। Amazon कहाँ से जाके बेचता है। और Cloudtail को कौन ओन करता है? Cloudtail को कौन own करता है? Amazon। तो Cloudtail कहाँ जाके बेचता है? Amazon में। Amazon. तो कौन तो वो शॉप और स्टोर की बात हो रही थी? Cloudtail की दुकान है क्या कहीं पे? फिजिकल स्टोर है क्या कहीं पे? कहीं कोई फिजिकल स्टोर नहीं। ठीक है। इसी तरह से भास्कर ने फ्लिपकार्ट का पूछा था। फ्लिपकार्ट इज नॉट अ रिटेलर, लेकिन फ्लिपकार्ट पे सब्सिडरी है उनकी अपनी। व्हाट इज दैट कंपनी कॉल्ड? एनीबॉडी? क्या शॉपिंग कर रहे हो? Walmart. नहीं, नो वॉलमार्ट की अपनी दुकान है। फ्लिपकार्ट एश्योर्ड तो ब्रांड कैंपेन है और प्रोडक्ट के लेवल पे। There's a company called WS Retail, which is owned by WS Retail is owned by कुछ पता नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। WS Retail is owned by अरे अब तो बताओ, अब तो चमकना चाहिए ना। इंटरनेट सर्च करके बता। हाँ इंटरनेट सर्च करके बता दो कि WS Retail is owned by Flipkart। तो रिटेलर कौन हुआ फ्लिपकार्ट पे? WS। ठीक है। अब दो सवाल उठते हैं यहाँ पर। पहला तो ये, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही क्या कि Amazon का अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें करोड़ों रिटेलर है और एक रिटेलर Amazon का अपना है? इसमें कुछ दिक्कत नहीं लग रही तुम्हें? क्या दिक्कत है इसमें? किसके लिए अनफेयर है ये? किसके लिए अनफेयर है ये? रिटेलर आउटसाइड। किन रिटेलर के लिए? हाँ किन रिटेलर्स के लिए? अदर रिटेलर्स अलग ये कि एल्गोरिथम किसको प्रमोट करेगा? एल्गोरिथम किसको प्रमोट करेगा भाई? Cloudtail को Cloudtail को करेगा हमेशा Cloudtail को करेगा। Cloudtail के पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, Amazon क्या स्कीम चलाने वाला है, सारा चीजें हैं Cloudtail के पास। बाकी तो इसको लेके 2-3 साल पहले बड़ा हल्ला हुआ था। पता नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मतलब नहीं है। छोटे रिटेलर्स ने हल्ला किया कि दिस इज अनफेयर। तो फिर सरकार ने कहा कि ये रिटेलिंग का लाइसेंस है नहीं, तो उसमें उन्होंने कुछ रूल बनाए कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी एक रिटेलर, किसी एक सिंगल रिटेलर का सेल 15% या 20% ओवरऑल का रेशियो से ज्यादा नहीं हो सकता है। So that the sale gets टोटल Amazon के रेवेन्यू से 40% ज्यादा नहीं हो सकता, 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कुछ तो रेशियो था। थैंक यू अनिर्बान, क्योंकि इससे अदरवाइज क्या होगा, बहुत अनफेयर हो जाएगा। ठीक है। सो अगर 40% अनिर्बान बोल रहा है, वी विल गो विद दैट। सो बेसिकली सो दैट दी ओन रिटेल। द अदर थिंग दे सेड दैट कि Cloudtail की ओनरशिप पूरी है तो 100% नहीं हो सकती है। So they said that it has to be less than 50%. So I think 49% का कैप है।
कि Amazon can't have more than 49% stake in Cloudtail. Similarly, Flipkart can't have more than 49% stake in WSCL. ऐसा कुछ उन्होंने रेशियो बनाया ताकि चीजें फेयर हो जाए. Is that okay? Make sense? Yes or no? हाँ ना पता नहीं. Yes sir. Coming back to question. तो ये तो हमने पता कर लिया कि फ्लिपकार्ट रिटेलर नहीं है. भास्कर ने पूछा फ्लिपकार्ट क्या है, फिर क्या है फ्लिपकार्ट? प्लेटफॉर्म है सर. एक कम्युनिकेशन ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म. हाँ, प्लेटफॉर्म है बेसिकली. खालिस भाषा में क्या बोलते हैं भाई, क्या कर रहा है वो, दो लोगों को मिला रहा है. रिटेलर्स को मीडिया में ब्रोकर है. दलाली है, दलाली का धंधा है ये सब. ठीक है, और कुछ नहीं है. ठीक है, कोई असेट नहीं करना है, दलाली करनी है. और उस पे क्या मिलता है? कमीशन. The term when you, so what are they not doing in the business? They're not sharing the risk with investing, not sharing the risk. When you don't share the risk, when you don't invest in the inventory, it is called commission. The money that you make is called commission. जो अनिर्बान ने कहा. Okay. और कहाँ तुमने सुना है क्या बेचने पे लोगों को कमीशन मिलता है? बहुत कॉमन है. फाइनेंशियल प्रोडक्ट, स्टॉक. क्योंकि स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि आदित्य स्टॉक ब्रोकर क्या नहीं करता है, क्या नहीं करती है? इन्वेस्ट नहीं करता है. They don't invest Risk. They don't buy and resell. Okay, they don't invest in the business. So understand the business. Insurance, क्या बोलते हैं उनको? Agents. Because what are they? Why are they not retailers? End consumer को तो बेच रहे हैं ना वो अलीवा. Retailer क्यों नहीं है वो? Because they are not buying. Commission, not. They are not buying. They are not वो investing. मीडियम है कोई. They are not buying. They are agents. They are not buying. They are not investing. helping LIC sell to the end consumer. Okay, they are agents, and hence what they get is not. Hence what they get is जो अनिर्बान और आशीष बोल रहे थे. Not salary. Commission. Just commission. सैलरी वाला एंगल अलग है. They get commission. ठीक है. जब रिटेलर खरीदता है और बेचता है, या कोई भी बिजनेस, होलसेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तब जो परसेंटेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? Margin. मार्जिन. तब उसको बोलते हैं मार्जिन परसेंटेज. आइडियली एक ही धंधे के लिए मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, कमीशन ज्यादा होना चाहिए. कौन सा परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए? हाँ, क्यों मार्जिन ज्यादा होना चाहिए आशीष? because we are investing. Because they are investing and they are sharing risk. तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ओनरशिप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, खेल बदल जाता है. भास्कर, does it answer your question? ठीक. Okay. Any other question? Anybody has any other question? Anybody has? सरस्वती पूजा कल है. हाँ. Any other question? Anybody else? सर रियल एस्टेट के केस में भी तो कमीशन होता है. बिल्कुल, क्योंकि जो वो ब्रोकर बेचने आता है सौरभ, वो क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. हाँ, वो लैंड खरीद के नहीं बेच रही है, प्रॉपर्टी खरीद के नहीं बेच रही है, तो फिर वो कमीशन. इज दैट ओके सर? यस सर. यस सर. हाइपर मार्केट समझ में आ गया? क्विक. ओके. बड़े स्टोर्स, एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए. बिग बाजार इज अ गुड एग्जांपल. बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, ग्रोसरी भी होता है, लार्ज स्टोर. ओके. ऐसा नहीं है कि बिग बाजार के सारे स्टोर्स हाइपर मार्केट होंगे. एक ही रिटेलर के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं. तो कहीं पे उसने हाइपर मार्केट खोला है, कहीं पे छोटी दुकान है वो सुपर मार्केट खोला है. ठीक है, जैसे स्पेंसर मैं बोल रहा था, साउथ सिटी मॉल वाला हाइपर मार्केट है, लेकिन कहीं पे छोटी दुकान भी हो सकती है, तो वहां पर वो सुपर मार्केट. सर डेफिनेशन वाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर मार्केट एंड सुपर मार्केट? वो डिपार्टमेंट देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्टोर साइज. ठीक है, बट जनरली मोटा मोटा हाइपर मार्केट बनने के लिए एटलीस्ट 10 to 15,000 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकान होनी चाहिए. Okay, but there is no, I don't know actually. I want to understand, and you, Avik, if you can research and tell me, कि is there any specific number around it? Okay, but मोटा 10 to 15,000 बोलते हैं. ठीक है? Okay. Specialty store, example, specialty store. Icon store. Sports Emporium. IKEA. Sports Emporium या फिर Furniture Plaza. Furniture stores like IKEA. Pepper Fry. So would Pratyush? Sports Emporium, Furniture Plaza. Sports Emporium, good. Sports Emporium, Decathlon. Okay, Decathlon. Furniture. हाँ, फर्नीचर का हो गया बहुत सारा. प्रत्युष कुछ बोलना चाह रहा है. प्रत्युष.
I speak about the sports store, like the store which collect the sports item and other furniture also. Correct, like Sports Emporium and Decathlon, right, Pratish? Yes, sir. हाँ, प्रोडक्ट मिक्स पे वापस जाते हैं थोड़ा. स्पेशलिटी स्टोर में प्रोडक्ट मिक्स विड्थ ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. विड्थ नैरो होगा. बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रख रहे हैं, लेकिन क्या चीज ज्यादा होगी? लेंथ. एंड उससे भी ज्यादा क्या होगा? Brand and style. Depth. Variants. Lots of variants. Okay, so length और depth बहुत ज्यादा होगी, width narrow होगा. Am I clear? हाँ. Any question? No. Okay. Department stores where you have a lot of Sir, departments. हाँ, Abhilash. product line. Can we say Apple stores or Samsung stores to be specialty stores? Yes. Absolutely true. Yes, very good example. Okay, very Sir, good. Fast Track store. हाँ, a lot of, yes, Fast Track store or a watch store, even medicine. Sir, can you say that, Lenskart is a good example. Sir, Fast Track is a department store, no sir? That's the department of Tata, like Titan. Sorry, टाटा लेवल पे नहीं है ना. टाटा डिपार्टमेंट स्टोर मतलब दुकान के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं? Are there a lot of segregated departments? तब वो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है आशीष. कंपनी से नहीं आ रहा है. Do you get it? Don't get confused. Okay. तो फास्ट ट्रैक के दुकान के अंदर बहुत डिपार्टमेंट नहीं होंगे ना. आशीष को सब लोग बताओ डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जांपल जहां बहुत डिपार्टमेंट हो. Sir, any supermarket or hypermarket? All supermarkets and hypermarkets can be considered departmental stores. Any other departmental stores which have not discussed, Swati or anybody else? Sir, भुवनेश्वर में से Pantaloons है वो. हाँ, Pantaloon Aditya is a very good example. बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं. Shopper Stop, very good example. Shopper Stop is a very good example. Website. Sir, can we say apparel showroom is a department store? Not all, na Swati. And अगर apparel is the only department in that store, then वो departmental store नहीं होगा. Departmental store में बहुत सारी. West Side. But West Side is a departmental store not because of apparel section, but because West Side will have a lot of different departments. So apparel होगा, perfume होगा, watch का section हो सकता है, souvenir का section हो सकता है, home furnishing का section हो सकता है. So बहुत सारे department होंगे. इसलिए West Side can be a department store. Only एक department के कारण से departmental store नहीं बनेगा. इसीलिए मैंने आशीष को बोला Fast Track is not a departmental store because there is only one section. You don't have. Bhubaneswar, what? Central. Central, correct. Yeah. Central, yes. Central is a good example of department store. Okay. Reliance Digital, Rishabh, पहले तो ये बताओ मुझे क्यों डायरेक्ट लिखते हो? सबको लिखा करो. Chroma, Reliance Digital, yes. I don't know if they are purely departmental store. Difficult for me to answer in yes or no. Okay, both Chroma and Reliance Digital. But they offer multiple products, not a yes, single they product. do. But I'm saying that the category is, हाँ ठीक है, but category थोड़ा electronics से restricted है. हाँ, वही आदित्य भी बोल रहा है. Category थोड़ा restricted है. So they could also be considered specialty stores. Could also be considered as specialty stores. कि Chroma Digital थोड़ा dicey है. I can't answer like that. थोड़ा dicey. But can be considered department store also. हाँ लेगा कुछ. सर डिपार्टमेंट स्टोर और जो हाइपर मार्केट्स में डिफरेंस क्या है? सब तो मतलब हाइपर मार्केट में सब डिपार्टमेंट्स होते हैं और हाँ. तो एक आउटलेट या एक रिटेलर अलीवा is not necessarily only one type of a store. Can be categorized or branded as different. So एक हाइपर मार्केट can also be a departmental store. ठीक है. हाइपर मार्केट की डेफिनेशन अलीवा इससे आती है कि कितना बड़ा है वो स्टोर साइज जो अभी पूछ रहा था. एटलीस्ट 10 to 15,000 के ऊपर होना चाहिए. प्लस ज्यादा कैटेगरीज रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं. ठीक है. एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में ये है कि वो डिपार्टमेंट सेग्रीगेटेड है यानी. बट हाइपर मार्केट कैन ऑल्सो बी डिपार्टमेंटल स्टोर. बट डिपार्टमेंटल स्टोर कैन और मे नॉट बी अ हाइपर मार्केट. तो मान लो एक छोटी दुकान है, वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए, तो डिपार्टमेंटल स्टोर है लेकिन हाइपर मार्केट नहीं है. सो it's a bit fluid in that sense. Okay, Aliva, but you have a valid point. ठीक है.
Sir, sir, हाँ. the non-veg world which is there in Patia, what kind of store it can be? Which store in Patia? So non-veg world. Non-veg world. I think it will be a specialty store. That's my understanding. Very very niche and It has specialized. also departments for different. हाँ, so वही मैं बोल रहा हूँ कि within a specialist store it can. तो अलीबाग को भी मैं वही बोल रहा था ना कि one outlet can be 2 types of it. Specialty है लेकिन बहुत departments created है, तो it also becomes a department store. ठीक है? So departmental store is more around about how is the outlet structured. How is the outlet structured? हाँ, पूछो सर. Sir, what about Miso? Misho is not a store-based retailer. E-commerce है ना वो तो. Sir, but it is a reselling platform. हाँ, no, I'm saying it's अभी हम physical store-based retailing की बात कर रहे हैं ना. E-commerce अगर okay, because you've asked, okay, if you have asked, अगर वो product खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, then they are retailers. So I don't know whether Misho is a platform or whether they buy and resell. So you can only answer. ठीक है? ऑनलाइन में हर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बाय द वे. ऑनलाइन में हर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. They buy and resell. Misho. There are players who buy and resell, like Yeah, in Misho Nykaa. I think Nykaa buys and resells. I think Nykaa buys and resells. Yes, sir. Or they sell their own branded product directly to consumer. So Nykaa in that sense becomes a retailer. Retailer. लेकिन Nykaa is also a platform. Yeah. Because they allow other brands to come and sell direct. लेकिन अगर ओनरशिप लेते हैं तो वो रिटेलर है. ठीक है? So in Misho it happens that we are also able to, like, through that we are able to sell products to others. So in what which will be case वो वाला एस्पेक्ट, हाँ, जैसे OLX हुआ. ठीक है? So ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल है. इसमें जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है, रिटेलर नहीं है. OLX इज नॉट अ रिटेलर. OLX को मार्जिन नहीं मिलेगा. OLX को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा. वो नहीं बेच रहे हैं ना. उन्होंने ओनरशिप ली क्या? OLX ने ओनरशिप ली क्या? नहीं. अगर ये धंधा ऐसा होता, और वो पॉसिबल है, अगर ये धंधा ऐसा होता कि वो मेरा पुराना सामान खरीद के स्टोर करते और फिर क्या करते? तब वो क्या होते? रिटेलर का मार्जिन होता. तब रिटेलर होते. लेकिन क्योंकि वो 2 पार्टीज को केवल मिला रहे हैं, तो वो क्या है? प्लेटफॉर्म एंड दलाल. Ola, Uber are not retailer. जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगा, तब ओला will become retailer because it is taking risk and investing. ठीक है? And it has to sell directly to retailer. बनने के लिए it has to sell directly to consumer. तब हम उसको रिटेलर बोल सकते हैं. Are you getting the point? Sir, car देखो and cars 24. हाँ, तो फिर वही है ना कि are they taking ownership or not? So I don't know. Yes sir, they are taking ownership. Yes, sir. हाँ, so अगर ओनरशिप लेने तो फिर रिटेलर ओनरशिप. तो ऐसा नहीं कि ई-कॉमर्स में रिटेलर्स नहीं हैं, प्योर रिटेलर्स. बिग बास्केट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म. बिग बास्केट क्या करता है? Buys from mandi. हाँ, they buy from mandi or farmers. They stock it and then Resell it. directly to consumer. So big basket is a retailer, pure retail. Big basket is a pure retail. Am I making sense? Xiaomi retailer है या नहीं है? Xiaomi mobile retailer है या नहीं है? है सर. कब retailer? No sir. सर अपना प्रोडक्ट किस केस में रिटेलर है? सर अगर हम लोग स्टोर पे जाके लेंगे, जब वो फाइनल प्रोडक्ट अपना स्टोर से बेचने पे रिटेलर नहीं है. स्टोर से बेचने पे Xiaomi रिटेलर नहीं है. स्टोर से बेचने पे कौन रिटेलर है? स्टोर ओनर है. Xiaomi ने किसे बेचा? स्टोर ओनर नहीं, उसको भी नहीं बेचा. Xiaomi ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा. डिस्ट्रीब्यूटर ने किसे बेचा?
स्टोर ओनर को, रिटेलर को, और रिटेलर ने किसे बेचा? कंज्यूमर। तो यहाँ पर रिटेलर कौन है? Xiaomi नहीं है, Xiaomi नहीं है, वो रिटेलर है। लेकिन Xiaomi एक जगह रिटेलर की तरह काम करता है। कब Xiaomi रिटेलर बन जाता है? MI स्टोर, कहाँ पर? MI स्टोर, Amazon, Flipkart। जब Xiaomi अपने MI वेबसाइट स्टोर से से। बेचता है, वेरी गुड Xiaomi। MI स्टोर, जब MI स्टोर अपने ऑनलाइन वेबसाइट से बेचता है तो ओनरशिप किसकी है उस प्रोडक्ट की? Xiaomi की है। और वो डायरेक्टली किसे बेच रहा है? कंज्यूमर। जब आप Xiaomi की वेबसाइट से जाके खरीदते हैं मोबाइल, तब Xiaomi रिटेलर है, ठीक है। जब आप Amazon पे जाके खरीदते हैं Xiaomi मोबाइल, तब कौन रिटेलर है? Amazon नहीं, जो भी जिस रिटेलर जो भी रजिस्टर्ड रिटेलर से आपने खरीदा है, वो क्लाउडटेल हो सकता है, कोई और हो सकता है, वो है रिटेलर। क्योंकि उसने क्या किया है? उस Xiaomi मोबाइल को परचेज किया है और वो आपको रीसेल कर रहा है। इज दिस सर क्लियर? फिर जो सब फ्रेंचाइजेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो आता हूं मैं, फ्रेंचाइजीज पे आता हूं, उस पे करीब आधा घंटा बकवास करेंगे, तब जाके समझ में आएगा फ्रेंचाइजी में क्या होता है। Yes, my point was same. I don't know what their revenue model is. कुछ तो कमीशन का एंगल होगा, कुछ तो कमीशन का एंगल होगा। I don't know the what. price we are giving over the platform. the Someone is traffic purchasing on they are exact getting price. from Sir, they I don't know actually have what a the plan. They actually have a plan to list your product on the top 4 or 3 suggestions. हाँ That way they तो can कहीं तो रेवेन्यू मॉडल होगा। ऐड के advertisement थ्रू भी होगा, होता है सर। ऐड के थ्रू traffic generation ऐड के ad थ्रू होगा, ऐड के थ्रू होगा, कमीशन नहीं है, फिर ऐड के थ्रू होगा, ठीक है। तो हमने वो फ्रीमियम पढ़ा था ना, अनिर्बान जो एग्जांपल दे रहा है, फ्रीमियम प्राइसिंग। क्या होती है फ्रीमियम प्राइसिंग? क्या होती है भाई प्रीमियम प्राइसिंग? 2 क्लास पहले ही तो पढ़ा था, मिड से मारा है भाई। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है? तो पोर्टल में जब हम लोग लॉगिन करते हैं तब फ्री रहता है, बट उसके बाद कुछ सर्विसेज वो लोग जब ऑफर करते हैं उसके लिए वो चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज। कोर प्रोडक्ट इज, केवल श्रिया पास करेंगे मैम टू। कोर प्रोडक्ट इज फ्री एंड बाय फ्रीमियम बिकॉज फॉर सर्टेन फीचर्स यू विल हैव टू पे। भास्कर सवाल पूछ के कहाँ भाग गया भाई? अनिर्बान ने जवाब दे दिया। ओके, लेट्स क्विकली मूव अहेड। ऑफ प्राइस रिटेलर कौन होते हैं? ऑफ प्राइस रिटेलर कौन? सर जो कम दाम में खरीदते हैं, होलसेलर से कम दाम में खरीदते हैं और लोगों को, लाइक उनके कंज्यूमर को, उससे भी रिटेलर से कम दाम में बेचते हैं। कैसे और क्यों? कैसे? क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा डिफरेंट है। द प्रोडक्ट इज आइदर ऑफ सीजन, leftover good or a damaged, या फिर अनवांटेड भी रहता है, इसलिए ज्यादा डैमेज होता है, ओल्ड होता है, राइट? और स्लो मूविंग या फिर ऑफ सीजन, जो किसी ने वर्ड यूज किया, दैट्स अ गुड वर्ड टू यूज। सो ऑफ प्राइस रिटेलर्स वो होते हैं, ठीक है। एग्जांपल Cashify. I don't know where is it. Sir, I'm not sure, but is Brand Factory an example? Brand Factory is an off-price retailer. Brand Factory outlets, all factory outlets are off-price retailers. Brand Factory is an off-price retailer. हाँ निर्मित। सर OLX.in तो होगा ना? कौन सा? OLX.in? OLX तो ओनरशिप नहीं ले रहा ना, इसलिए रिटेलर। सर ब्रांड फैक्ट्री डिस्काउंटेड होगा या ऑफ प्राइस होगा? ऑफ प्राइस और डिस्काउंटेड में देखो माशाल्लाह दोनों में डिस्काउंटिंग हो रही है, लेकिन डिस्काउंट जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो फ्रेश प्रोडक्ट भी डिस्काउंट कर रहे हैं। ऑफ प्राइस में यूनिक ये है कि उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पूरा, या तो जैसे आप ही ने सिखाया ना हमको, या तो डैमेज गुड है, या ऑफ सीजन प्रोडक्ट है, या नॉन सेलिंग आइटम। जबकि डिस्काउंट स्टोर्स में फ्रेश प्रोडक्ट्स भी डिस्काउंट हो सकते हैं, जैसे बिग बाजार वगैरह में होता है, वॉलमार्ट। सर बट ब्रांड फैक्ट्री मेक सेंस माशाल्लाह? रॉन्ग प्रोडक्ट्स नहीं बेचते ना। Yes, the brand factory. Okay, एक करके शारदा, एक सेकंड। हाँ शिवानी। सर ब्रांड फैक्ट्री डैमेज प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, पर ऐसा क्या पता, किसने बताया आपको?
सर नहीं शिवानी बेचते हैं। किसी बता हाँ वहाँ पे जाके ही लगता है सर सब पुराना कपड़ा है मतलब नहीं, नहीं, सर वैसा सर नहीं है। बिग बाजार में यानी आपको पता नहीं है, बना रहे हैं आपको, ऐसा है। नहीं सर डैमेज मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब थोड़ा फटा हुआ, बट so not all, so as somebody said that it could be off season also, it could be old stock also, कई रीजन हो सकते हैं, but sometimes there is some damage, so minor damage here and there, या फिर refurbished मतलब थोड़ा वो डैमेज है, उन्होंने उसको कवर कर दिया and all that, so a lot of things happen, okay, these are called off सर price. देन Sir, सर is true value and off बहुत डिस्कस करना है, हाँ पूछो अलीबा, फिर सुधांशु। हाँ सर जो बिग बाजार की और कोई भी मॉल्स हो वहाँ पे सर जब ओल्ड हो जाता है स्टॉक तो वो रीसेल कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं, मतलब उधर Correct, न्यू अराइवल्स में डिस्काउंट नहीं देते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट दे करेक्ट देते हैं। करेक्ट महाश्वेता को बताओ, ये महाश्वेता पूछ रही थी, तो सर correct. सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स लेकिन ब्रांड फैक्ट्री वगैरह में दी एंटायर पोर्टफोलियो, जो महाश्वेता डिफरेंस पूछ रही थी, दी एंटायर पोर्टफोलियो इज आइदर ओल्ड स्टॉक, ऑफ सीजन स्टॉक और डैमेज स्टॉक, तभी वो ऑफ प्राइस रिटेलर कहलाता है। हाँ सुधांशु पूछो। Sir, is true value an off price retailer? ट्रू वैल्यू इन दैट सेंस इज एन ऑफ प्राइस रिटेलर, गुड एग्जांपल सुधांशु। मारुति ट्रू वैल्यू रिटेलर है या नहीं है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है सुधांशु का, ट्रू वैल्यू रिटेलर है या नहीं है? यस सर है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, और रीसेल कर रहा है, तो ऑफ प्राइस रिटेलर है। सुधांशु बहुत बढ़िया एग्जांपल। ओके, डिस्काउंट स्टोर्स, अगेन महाश्वेता ने पूछा, आई एम जस्ट रिपीटिंग, सो स्टोर्स व्हिच डिस्काउंट देयर प्रोडक्ट्स अ लॉट लाइक बिग बाजार, बहुत सारे एग्जांपल है इंडिया में, तो ग्लोबल एग्जांपल है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से अच्छा कोई एग्जांपल नहीं है डिस्काउंट स्टोर का, उनका पूरा बिजनेस मॉडल डिस्काउंटिंग पे है। और प्राइसिंग में मैंने कहा था कि डिस्काउंटिंग मॉडल गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल है मैनेज करना, ठीक है, इतना इजी भी नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। वॉलमार्ट इज एक्सपर्ट, वॉलमार्ट इज अ चैंपियन एट इट। हाँ Sir, DMart also a discount. DMart is a discount store, very good example Ashish. DMart is a discount store, VMart is a discount store, Big Bazaar is a discount store. Brand Spencer factory and also. more also discount, but not to that extent, not to that extent. Brand factory भी sir. Brand factory is also discount store, correct? Okay, सर fine. जितने सारे हाइपर मार्केट है सभी तो एक तरीके से मोस्टली सब डिस्काउंट पे खेलते हैं, मोस्टली, यू आर राइट, हाइपर मार्केट मोस्टली डिस्काउंट पे खेलते हैं, but that is not a necessary thing. So if you can do some other augmentation, you might not have to discount them, but आज की डेट में काफी डिस्काउंटिंग है, you are absolutely right, ठीक है। Okay, catalog showroom, categories which sell on catalog, quick, categories which sell on catalog. सर The furniture. Jewelry shop. Jewelry shop. Jewelry. Okay, let's look at 3 examples: paint, furniture, jewelry, also automobile. Sneha? Restaurants also. Sneha? सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। What products, Sneha? Sir, fabrics. Fabrics. Good example. Good सर example. ब्यूटी प्रोडक्ट्स। Not all. Avon, I don't know, Piyush, but cosmetics can, some of the brands, I don't know Avon, but a lot So of like brands. Oriflame. Sir, Oriflame. KFC. But Oriflame is again not a physical store. It's not a physical retailer. Sir, Store-based home retailer. decor. Home Home decor. decor. Okay. Correct. Sir, Let me KFC. ask this question. Okay. The bigger question here is, okay, पेंट से शुरू करते हैं। पहले पेंट का एग्जांपल आया था, क्यों कैटलॉग पे है पेंट, क्यों कैटलॉग पे बिकता है? सर बिकॉज हम उसको शो नहीं कर सकते हैं ना, उसको क्यों नहीं शो कर सकते स्वाति, क्यों नहीं शो कर Because there is a large variety. लार्ज वैरायटी है। अगर फिजिकल प्रोडक्ट रखेंगे और वैरायटी है, और कंजम्पशन किस में होता है, छोटे क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, छोटे quantity. ज्यादा 20-20 किलो का बकेट जाता है ना, तो वेरिएंट, आदित्य कह रहा है वेरिएंट बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो अगर प्रोडक्ट रखेंगे तो क्या इश्यू है? स्टोरेज सर। स्टोरेज। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बेचा जाए? कैटलॉग। फर्नीचर, होम डेकोर, सबकी ये कहानी है। क्यों फर्नीचर कैटलॉग पे बिकता है? बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएंट्स इज very large, Very high. हाँ, and each product is वेरिएंट भी ज्यादा है, और हर वेरिएंट बहुत Customizable है. Customize is different.
बहुत बड़ा है, स्पेशियस है। तो अगर मैं सारा आइटम स्टॉक करूंगा दुकान पे तो क्या बढ़ जाएगा मेरा रिक्वायरमेंट? स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट, मेरा धंधा वायबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो इसलिए होम डेकोर और फर्नीचर, आइकिया एक्सेट्रा सब कैटलॉग पे। ठीक है, ज्वेलरी किसी ने कहा, ज्वेलरी तो छोटा आइटम है, उसको क्यों कैटलॉग पे बेचना भाई? सेफ्टी उसका बहुत कॉस्टली इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। हाँ, तो अगर मैं सारा आइटम स्टॉक करूंगा तो क्या बढ़ जाएगा मेरा? इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट। वेरिएंट्स क्या है? फिर से ज्वेलरी में वेरिएंट्स क्या है? कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और सारे वेरिएंट्स अगर मैं स्टॉक करूंगा और हर वेरिएंट महंगा है, यहाँ पे स्पेस का खेल नहीं है, यहाँ पे किस चीज का खेल है? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कोई स्वाति शायद सेफ्टी भी बोल रही थी, सेफ्टी का भी पॉइंट है, बट इट इज मोर अराउंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो यू विल हैव टू सेल दिस प्रोडक्शन कैटलॉग। ठीक है, एक डेडली कैटेगरी है ऑटोमोबाइल। आइटम क्या है? आइटम बड़ा भी है और बहुत महंगा भी है, प्राइस महंगा भी है। तो दोनों रिक्वायरमेंट अगर मैं स्टॉक करूंगा तो दोनों रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगी। कौन सी रिक्वायरमेंट? इसलिए ऑटोमोबाइल हमेशा कैसे बिकेगा? कैटलॉग। वहां पर दुकान में 2 या 3 मॉडल ही रहेंगे, बाकी समझ लेना, ठीक है। ओके, फाइन। This is on that. Another categorization is based on ownership. Okay? ये सारा था कि क्या स्टोर साइज है और वो क्या प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, कॉर्पोरेट चेन स्टोर्स क्या होते हैं? राजेश्वरी आप हैं? मिस साहू? राजेश्वरी? यस सर, यस आई एम देयर। हाँ, बताइए कॉर्पोरेट चेन। किसी ने कॉल किया आपको? हाँ बताइए, आपको कॉल किया कि सर पूछ रहे हैं, बताइए कॉर्पोरेट चेन स्टोर क्या होता है? सर कैन यू अगेन रिपीट द क्वेश्चन? कॉर्पोरेट चेन स्टोर क्या होता है? ऑफ कोर्स आई कैन रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू। कॉर्पोरेट चेन स्टोर क्या होता है, बट कैन यू रिपीट द आंसर? आई डोंट नो। बहुत बढ़िया, नंबर तो काटना पड़ेगा मुझे राजेश्वरी। हाँ यश सिंह, कॉर्पोरेट चेन स्टोर। सर यस सर, सर लाइक वॉलमार्ट सर। सर जो आउटलेट्स दोस आर ओन्ड बाय सिंगल कंपनी एंड दे हैव अ lot of yes, a lot of varieties, stores, stores, lot of retail outlets. Okay, Variety of outlets. Variety से मतलब नहीं है, एक कंपनी owning a lot of outlets. राजेश्वरी को कॉल आ गया। हाँ भाई, हाँ, lot of stores like Walmart का एग्जांपल दिया यश ने, और जल्दी से बता दो बहुत सारे। बाटा। सर मैकडॉनल्ड्स। सर मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, Reliance, Food outlets, or that KFC. lot of food outlets. Starbucks. Yes. Okay, H&M. So you get the example. Bata was a good example. जिसने भी बाटा का एग्जांपल दिया था। Okay, Lenskart. Okay, Lenskart also. वॉलंटरी चेन, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं। होलसेलर्स मिलकर रिटेल आउटलेट खोल सकते हैं, रिटेलर्स मिलकर एक चेन खोल सकते हैं। कई बार रिटेलर्स कम टुगेदर टू ओन अ चेन। इंडिया में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। केरला में मैंने एक एग्जांपल देखा था, फ्री मार्जिन फ्री बोल के कोऑपरेटिव था। वो कोऑपरेटिव छोटे छोटे रिटेलर्स ने मिलकर बनाया था, करीब 200 रिटेलर का वो ऑर्गेनाइजेशन था। वो लोग साथ में आए, उन्होंने कहा हम अपने नाम से दुकान नहीं खोलेंगे, हम कॉमन ब्रांड के नाम से दुकान खोलेंगे, एक कोऑपरेटिव बनाएंगे और उस कोऑपरेटिव का नाम दिया उन्होंने मार्जिन। इससे क्या फायदा हुआ उन्हें? क्यों 200 दुकानें मिलके उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया, उसके नाम से दुकान खोली? इससे क्या फायदा है उनको? एक तो कंज्यूमर साइड पे ये एडवांटेज है कि एक ब्रांड ऑलरेडी बिल्ट है, ठीक है, तो ब्रांड बिल्ड करना वो सब झमेला खत्म हो गया। अगर कंज्यूमर मार्जिन फ्री देखती है तो उसे पता है कि मार्जिन फ्री का क्या मतलब है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। सो देयर इज अ फैमिलियरिटी एंड ट्रस्ट अराउंड द ब्रांड। सप्लाई साइड पे क्या एडवांटेज है?
कोऑपरेटिव बनाने का। सप्लाई साइड पे क्या चीज उनको फायदा हो रहा है अगर 200 दुकानें साथ में आ गई तो? सर एक ही जगह लॉजिस्टिक का हेल्प होगा, एक ही जगह पे सप्लाई करना होगा। सप्लाई चेन का इश्यू बेनिफिट है, बट देयर इज अ बिगर बेनिफिट। सर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट नहीं कम होगा आदित्य, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कम। सप्लाई चेन Supplier से फेलियर बात- कम हो सकता है। क्या कम हो सकता है? सप्लाई चेन फेलियर सर, उसको मिटिगेट कर सकता है। क्या कम हो सकता है? सर सप्लाई चेन फेलियर सर, तो जैसे अगर 200 रिटेलर है, अगर इनकेस मान के चलिए एक एरिया में दो रिटेलर्स अगर है, तो फिर एक का अगर मान के चलिए 4 तक नहीं आता है तो दे कैन शेयर द। ओके फाइन, सो हाँ वो सब एफिशिएंसी आ जाएगी। आदित्य भी वैसे ही बोल रहा था, सप्लाई चेन साइड का बेनिफिट्स हैं, एक जगह डिलीवरी ले लो, बट देयर इज आल्सो बिग एडवांटेज ऑन नेगोशिएशन, बार्गेनिंग पावर। किसके साथ उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई? रिटेलर्स की। रिटेलर्स की किसके साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ गई? कस्टमर के साथ। अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। against the brands, because now they are buying in बल्क। ठीक है, याद रखना, मैं चैनल में बहुत ये ज्ञान देता हूं। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लॉट अबाउट पावर गेम। तो चेन तो एक है, कॉमन है, कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सब लोग हैं, ठीक है। तो लग रहा है कि सभी को तो सेम माल बेचना है, तो देयर शुड बी एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी, बट ऐसा नहीं होता है। Everybody has their own objectives, and these objectives could be different. So there's a lot of power game. Okay. So negotiation. So for example, supplier will try to sell the product at a higher price, lower price to the retailer. At a relatively lower price. Higher price. तभी तो उसे वो पैसा मिलेगा, है ना? And retailer will want to buy it at a lower price. There's a lot of these things which happen. ठीक है. सो इसलिए बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, जो मैं अनिर्बान को बोल रहा था, यश को पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। ओके, नाउ couple of things that we will discuss and be very alert with me. The last form of ownership classification is franchisee based model. So somebody was saying franchisee क्या होता है, कौन पूछा था? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, somebody asked. हाँ अभिलाष, तो मैंने अभिलाष को बोला कि फ्रेंचाइजी की बात करें, ठीक है। क्या होता है फ्रेंचाइजी मॉडल? एग्जाम्पल दो पहले, फिर उसके बाद समझेंगे क्या होता है। बर्गर किंग, KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल। Domino's service centers also. क्या? Phone service center also. फोन सर्विस सेंटर भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। MRF टायर्स एक एग्जांपल देखते हैं KFC का, ठीक है, या मैकडॉनल्ड्स का भी देख सकते हो। फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों करना है? बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल का क्या मतलब है? तो कहीं अगर दुकान खुली तो दुकान कौन खोलेगा? KFC खोलेगा या फ्रेंचाइजी खोलेगा? फ्रेंचाइजी खोलेगा, ठीक है। तो मैं KFC हूँ, मुझे भुवनेश्वर में पाल हाइट्स में दुकान खोलनी है, या बाय द वे कीट रोड पे KFC खुल गया है, जिनको नहीं पता है, अनदर रीजन फॉर यू टू कम नाउ। मुझे कीट रोड पे दुकान खोलनी है, मैं किससे कहूंगा कि भाई दुकान खोलो? उसके फ्रेंचाइजी को बोलो। फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेज हुआ KFC को इससे? उसका ब्रांड का खुला, ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। ब्रांड कौन ओन कर रहा है? ब्रांड कौन ओन कर रहा है? KFC ओन कर रहा है, फ्रेंचाइजी ओन कर रहा है? KFC ओन कर रहा है। ब्रांड पावर स्ट्रांग है या वीक है यहाँ पर? स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है यहाँ पर, वो दुकान खोलनी है, KFC खुद खोल सकता है या फ्रेंचाइजी पार्टनर से खुलवा सकता है, ब्रांड तो स्ट्रांग है। यहाँ पर ब्रांड का बेनिफिट KFC को हो रहा है या फ्रेंचाइजी पार्टनर को हो रहा है? फ्रेंचाइजी पार्टनर फ्रेंचाइजी पार्टनर को फायदा हो रहा है ब्रांड का। KFC को क्या फायदा हो रहा है? वो तो ब्रांड लेंड कर रहा है, इतना स्ट्रांग ब्रांड बना है। स्टोर बनाने का क्या कॉस्ट है गौतमी, ऐश्वर्या? फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो कॉस्ट हो पे करते हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट, उस दुकान को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उस वक्त? सर मशीनरी हो गया, लैंड, फर्नीचर, फिक्सचर,
वो सब पैसा कौन दे रहा है धंधे में? कौन डाल रहा है? फ्रेंचाइजी देगा। फ्रेंचाइजी डाल रहा है वो धंधे में। फ्रेंचाइजी देगा। फ्रेंचाइजी दे रहा है, फ्रेंचाइजी दे रहा है। तो KFC का क्या बच रहा है? ब्रांड नेम। क्या चीज बच रहा है? फिक्स कॉस्ट बच रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मान लो कि तो ये तो एक एग्जांपल है एक दुकान का, एक एग्जांपल है। KFC की मान लो 500 दुकानें हैं इंडिया में, हाइपोथेटिकली 500 दुकानें हैं, और एक दुकान खोलने में मान लो 2 करोड़ रुपीस लगता है, 2 करोड़ रुपया लगता है। तो अगर 500 दुकानें खोली तो कितना पैसा चाहिए KFC को? 10 करोड़। आज की डेट में ये 1000 करोड़ सिस्टम में कहां से आया है कैपिटल? फ्रेंचाइजी से आया है। तो 1000 करोड़ किसका इन्वेस्टमेंट बच गया? KFC का बच गया। इसलिए फ्रेंचाइजी पार्टनर चाहिए। माय फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग डाउन, माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग डाउन। ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि दुकान खोलते वक्त जनरेट होगा या प्रॉफिट होगा, वो किसके पास जाएगा? बहुत बढ़िया। तो शेयर अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। मैं ये बाद में बताने वाला था, बट अभिलाष ने क्योंकि पूछ लिया है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फायदा हो गया, लेकिन लेकिन उसका एक नुकसान, मतलब दोनों तरफ होगा ना, एक साइड तो नहीं हो सकता है। तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गया, जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा KFC को? शेयर करना पड़ेगा। किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? फ्रेंचाइजी। कौन सा कॉस्ट बढ़ गया? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। वो बर्गर बेच के अगर मुझे 10 रुपया मिलता, KFC हूं मैं, अगर वो मुझे 10 रुपया मिलता, अब उसमें से 3 या 4 रुपए कौन ले रहा है? फ्रेंचाइजी। तो मेरा कौन सा कॉस्ट बढ़ गया? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है अभिलाष? फिर सर यहाँ पे रिटेलर कौन हुआ? हाँ बताओ, रिटेलर कौन है यहाँ पर? फ्रेंचाइजी है रिटेलर। सर बट वो तो माल खरीद नहीं रहा ना, वो तो बना के खरीद रहा है और बेच रहा है। वो जो उसकी दुकान पे इन्वेंट्री है, वो जो बन रखा है और जो मुर्गा रखा है जो खा रहे हो तुम, वो फ्रेंचाइजी क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, खरीद रहा है। फ्रेंचाइजी पहले खरीद रहा है। तो मेरा एक तो फिक्स्ड कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो गया अगर मैं KFC हूं, और कहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो गया मेरा? कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं भाई? रॉ मटेरियल। अरे कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको? कैपिटल। इन्वेंटरी। Which investment? Working capital. Thank you Miss Neha Mukerji. Working capital इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। ये सब इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है धंधे में? फ्रेंचाइजी ओनर। ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेट बिजनेस मॉडल भी है। ठीक है। सो देयर आर कंपनीज लाइक रिलायंस को दुकान खोलनी होती है तो रिलायंस क्या करता है? रिलायंस ट्रेंड्स खोलना, रिलायंस क्या करता है? बना के पूरा दुकान देता है, खुद बनाता है, कोई फ्रेंचाइजी का धंधा नहीं है। ओनरशिप किसकी? ओनरशिप रिलायंस की। क्यों? रिलायंस का क्या थॉट? वेरिएबल कॉस्ट शेयर नहीं करना है, मतलब बढ़ाना नहीं है वेरिएबल कॉस्ट। क्या है उनके पास? बहुत कैपिटल। कि भाई ये पैसा है, पहले पैसा ले लो, फिक्स कॉस्ट में हम इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन आगे हमें क्या नहीं करना है? ठीक है सर। उनका तो मार्केट देखो, बहुत प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई सही या गलत नहीं है। ठीक है। ऑल्सो द इश्यू, ओके, द इश्यू, आई डोंट नो इफ आई कैन यूज द वर्ड इश्यू। तुम ये देखोगे जो ग्लोबल कंपनीज होती है ना, तो जैसे मैंने KFC का एग्जांपल दिया, वो फ्रेंचाइजी धंधे पे काम करते हैं। KFC हुआ, पिज्जा हट हुआ, क्योंकि वो देखो कैपिटल कम हो या ज्यादा हो, है तो लिमिटेड ना, है तो लिमिटेड, इनफाइनाइट तो नहीं है। वो क्या कहते हैं, अगर मैंने 1000 दुकानों को 500 दुकानों के चक्कर में 1000 करोड़ पैसा डाल दिया, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है मेरा? बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट किसमें हो गया है? That 1000 crore is invested in working capital.
No, it's not working capital. Fixed cost कैसे working? In Indian market. land and property and furniture. तो क्या कह रहे हैं कि मेरा कैपिटल कहाँ पे यूज हो रहा है? मेरा कैपिटल किस में यूज हो रहा है? किसमें यूज हो रहा है? Fixed cost. हाँ, but in what form? In the form of real estate. Land, real estate. वो क्या कह रहे हैं कि मेरा धंधा किस चीज का है, मेरी एक्सपर्टीज किस में है? रियल एस्टेट में है क्या मेरी एक्सपर्टीज? वो किस धंधे में है? KFC किस धंधे में है? Is in the business of food retailing. What is their expertise? वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ पे अगर मैंने लैंड में लगा दिया, एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा? कुछ एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा? रिटर्न आएगा नहीं आएगा? आएगा, कुछ तो होगा। 5% होगा, 10% होगा। लेकिन वो बोल रहे हैं मेरा बिजनेस क्या है? अगर मान लो 10% भी होता है, is that my expertise? Is real estate my business? No, real estate is not. मैं उस 1000 करोड़ को लेके कहां बेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर रिटर्न जनरेट कर सकता हूं? मेरी एक्सपर्टीज किसमें है? What will I do with this 1000 crore? What is my business? What will I do with this 1000 crore? Open new franchising, new R&D पे, correct आशीष? Advertisement में I will build the brand. That is my expertise. मैं 1000 करोड़ लेके ब्रांड बिल्ड करूंगा, मैं 1000 करोड़ लेके प्रोडक्ट पे R&D करूंगा, और कहाँ R&D करूंगा? प्रोसेस बिल्ड करूंगा, ट्रेनिंग पे करूंगा, मशीनरी पे करूंगा. Which is a better use of capital for me if I am KFC? जमीन में पैसा डाल दूं या फिर अपने बिजनेस प्रोसेसेस में? business processes. Business processes. Where will that money, 1000 crore, generate more returns for me, according to KFC? Business process. Business process. Which is what? Which is food retailing. Do you see the difference? Yes or no? ठीक है? Yes, sir. Okay. Reliance क्या सोचता है? इंडियन कंपनीज का क्या कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है? क्यों वो इतनी जमीन खरीद लेते हैं? किस चीज का डर है? किस चीज का डर? हाँ? कंपटीशन से भी ज्यादा किसी का डर है? क्यों फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं वो? गवर्नमेंट टेक ओवर. गवर्नमेंट का डर है कि धंधा कल को अगर बंद भी हो गया, एटलीस्ट मैंने क्या क्रिएट कर लिया है? मैंने क्या क्रिएट कर लिया है? असेट क्रिएट कर लिया है, तो कुछ तो जनरेट होता रहेगा, तो उनको इस चीज का डर रहता है. प्लस सर इस रीजन से तो और नहीं करना चाहिए ना. Am I back? Can you hear me? Yes. Yes, sir. Am I back? Can you hear me? Yeah. So I was saying कि उनको इस चीज का डर रहता है, so they play safe. And their Indian companies तो इंडिया में लैंड खरीद लिया तो प्रॉब्लम भी नहीं है. ठीक है, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ. IBM एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, $100 बिलियन वगैरह उनका उसका वैल्यूएशन पे चुका है और अभी भी काफी ज्यादा है. सॉफ्टवेयर कंपनी है, दुनिया में उनकी हजारों ऑफिसेज हैं, हजारों ऑफिसेज. अपार्ट फ्रॉम IBM हेडक्वार्टर इन US, एक भी ऑफिस उन्होंने खरीदा नहीं है, सब रेंटेड पे चलाते हैं. क्यों रेंटेड पे चलाते हैं? वो क्या कहते हैं कि अगर मैंने कैपिटल ऑफिस खरीदने में लगा दिया तो मेरा कैपिटल किस में इन्वेस्ट हो जाएगा? रियल एस्टेट. और वो कहते हैं कि मैं रियल एस्टेट के धंधे में नहीं हूं, मैं वो कैपिटल कहाँ यूज करूंगा? वेयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपिटल? सॉफ्टवेयर R&D, सॉफ्टवेयर R&D, मैन पावर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वहां पे इन्वेस्ट करूंगा ना मैं. बिल्डिंग माय ब्रांड, बिजनेस एक्विजिशन एटसेट्रा. डू यू गेट द डिफरेंस? हाँ सर, पर दोनों का तो मार्केट अलग है ना सर. जैसे रिलायंस का हम लोग अगर देखेंगे, रिलायंस लैंड इसलिए खरीदता है क्योंकि उसका फ्रेंचाइजी भी अगर कोई हो तो बहुत बड़ा उसको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, उसको स्पेस वगैरह सारा चीज चाहिए, और उसके पास इतना वैरायटी है रिलायंस के पास कि वो फ्रेंचाइजी सिस्टम में रह ही नहीं सकता है. जबकि अब नहीं है आदित्य, ऐसा नहीं है. तुम्हारा पॉइंट बहुत सही है, सही तरीके से सोच रहे हो, कैटेगरी अलग है, बट थॉट प्रोसेस फंडामेंटली सेम है. तुम कह रहे हो रिलायंस में बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी चाहिए, आउटलेट, इसलिए नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. कार शोरूम्स देखे हैं तुमने? कार शोरूम्स देखे हैं? यस सर. बड़े शोरूम होते हैं ना, स्पेस चाहिए और कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए. यस सर. चाहिए कि नहीं चाहिए? कार शोरूम फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं. फ्रेंचाइजी मिल जाएगा आदित्य. रिलायंस कल को अगर बोलेगा ना मेरे को रिलायंस फ्रेश के लिए फ्रेंचाइजी चाहिए, एक एप्लीकेशन देगा, मांगेगा, 1000 एप्लीकेशन आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है रिलायंस फ्रेश के नाम से दुकान खोलेंगे तो दुकान चलेगा.
चलेगा। ब्रांड 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 फ्रेंचाइजी पार्टनर मिलने की दिक्कत नहीं है रिलायंस को, वो प्रॉब्लम नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। पार्टनर मिल जाएगा लेकिन उसको नहीं चाहिए, वो बोलता है कि मैं फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर लूंगा, कल को दुकान बंद हो गई तो भी मैं सेफ हूँ। अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सही या गलत नहीं है, ओके, सही या गलत नहीं, ओके। नाउ इस हाँ पूछो सर, एक डाउट है सर, जो रिलायंस का स्टोर्स खुलता है तो उसको क्या प्रॉफिट मिलता है सर? जो मैनेज क्या प्रॉफिट मिलता है मतलब? सर मान लीजिए रिलायंस का कोई रिलायंस ट्रेंड खुला पटिया में, तो सर जिसने खोला है रिलायंस खुद से तो नहीं खोलता है? वही बात करें ना, रिलायंस खुद खोलता है, रिलायंस फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम नहीं करता है। that property furniture fixture is on Reliance books, there is no franchisee in Reliance, वो रिलायंस बस मैनेज करने को देता है क्या? मैनेजर का पेड सैलरी सर, वो मैनेजर वो सब तो सैलरी है ना, वो तो एम्प्लॉइज हैं, they are not owners, वो तो एम्प्लॉइज हैं, ओके राइट फाइन। बट देयर इज अल्टरनेट मॉडल जिनके पास कैपिटल नहीं, ओके जैसे रिलायंस के पास तो कैपिटल है उसको, इसलिए उसको नहीं चाहिए, ठीक है। वाओ मोमो रिलायंस के कंपैरिजन में बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है? बहुत छोटी कंपनी, लेकिन वाओ मोमो भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे नहीं गया है। वाओ मोमो दुकान खोलता है तो खुद खोलता है। वाओ मोमो क्यों खोल लेता है? उसको कैपिटल क्यों नहीं चाहिए दुकान खोलने के लिए? उसका जो प्रोडक्ट है सर साइज बहुत छोटा होता है। प्रोडक्ट नहीं है निर्माण, प्रोडक्ट नहीं, उसका जो स्टोर साइज बहुत छोटा होता है। स्टोर साइज बहुत छोटा है, तो दुकान खोलने के लिए उसे क्या कम चाहिए? कैपिटल कम चाहिए, कैपिटल कम चाहिए। लेकिन कल को अचानक से अगर उसे 500 या 1000 दुकानें खोलनी है तो शायद, अगर 1000 दुकानें खोलनी है तो शायद वाओ मोमो किस मॉडल पे चला जाए? फ्रेंचाइजी चला जाए। आज वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं तो उनको कैपिटल नहीं चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि हमको बिजनेस प्रोसेस नहीं आउटसोर्स। फ्रेंचाइजी बिजनेस में रिस्क है। क्या रिस्क है? तुम अपना क्या चीज आउटसोर्स कर रहे हो? केएफसी क्या आउटसोर्स कर रहे हो? हाँ, ब्रांड, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हो। कल को अगर केएफसी के चिकन विंग्स में कीड़ा निकलेगा, तुम फ्रेंचाइजी पार्टनर को गाली दोगे या केएफसी को गाली दोगे? केएफसी को। तुम्हें पता नहीं है फ्रेंचाइजी पार्टनर कौन है, सो देयर इज अ रिस्क, लेकिन वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। अगेन दो फ्रेंचाइजी अगर लेना देना है, दो ब्रॉड तरीके होते हैं। एक तरीका है जो केएफसी वगैरह करते हैं, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स। केएफसी के इंडिया में कितने फ्रेंचाइजी पार्टनर होंगे? या स्टारबक्स के कितने फ्रेंचाइजी पार्टनर? या मैकडॉनल्ड्स के कितने? इंटरनेट सर्च करके बताओ। केएफसी के कितने? मैकडॉनल्ड्स के तो होगा, ओवर 1000 होगा। करो सर्च करके बताओ। मैकडॉनल्ड्स का बताओ, केएफसी का बताओ, स्टारबक्स का बताओ। सर 400 380 स्टोर्स है सर। स्टोर्स नहीं, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। सर 174 in Starbucks इंडिया में। सर 160 in 174 in Starbucks। स्टोर्स नहीं गौतमी, फ्रेंचाइजी पार्टनर। फ्रेंचाइजी वेंचर कैपिटल सर, इसमें लिखा है वेंचर कैपिटल पर चल रहा है। Joint venture capital in India now has 174 stores across 11 cities. हाँ, वेंचर कैपिटल KFC का 400 फ्रेंचाइजीज। KFC का 400 फ्रेंचाइजीज इंडिया में। Yes sir, इंडिया में 400। Going in Google. गूगल में वही दिखा रहा है। मैकडॉनल्ड्स का चेक करो। ओके फेयर। स्टारबक्स का सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी पार्टनर है गौतमी। स्टारबक्स का बस एक ही फ्रेंचाइजी का दो है। मैकडॉनल्ड्स का दो है। केएफसी का 3 है सर। केएफसी का 3 है। केएफसी के 3 फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं। मैकडॉनल्ड्स के 2 हैं। केएफसी के 3 हैं, मैकडॉनल्ड्स के 2 हैं ऑल ओवर इंडिया। केएफसी की कम से कम मान लो 500 दुकानें हैं इंडिया में, ठीक है। 3 प्लेयर हैं, 3 फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं। ये फ्रेंचाइजी पार्टनर बड़े होंगे या छोटे होंगे? बड़े होंगे। They have invested at least 500 crores, 1000 crores already in their business. तो बिग प्लेयर्स, राइट। मैकडॉनल्ड्स के 2 फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं इंडिया में, उनकी कम से कम 1000 दुकानें होंगी। तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स इज अ बिग प्लेयर। मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी पार्टनर इज अ स्मॉल प्लेयर।
Big players. Very big players. players. क्या एडवांटेज है बिग प्लेयर होने का? क्यों ये लोग ऐसा मॉडल लेते हैं कि कुछ स्टारबक्स का केवल एक ही है फ्रेंचाइजी पार्टनर, कौन है वो? टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड। इसका क्या एडवांटेज है? कम प्लेयर्स के साथ काम करने का क्या एडवांटेज है? सर मोनोपोली कर सकते हैं। मोनोपोली नहीं, बार्गेनिंग। तो उस चीज को इक्विटी से कैसे लेस प्रॉफिट शेयरिंग? भास्कर, कैसे लेस प्रॉफिट शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग तो पर यूनिट बेसिस पे है दोस्त। तो मॉनिटर करना इजी होगा सर। क्यों फ्रेंचाइजी पार्टनर चाहिए था? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर ये प्लेयर बड़े हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे? कैपिटल आराम से टाटा से मिल जाएगा। ओके, केएफसी का पता नहीं, हाँ आरजे कॉर्प बोल के कंपनी है, और पिज्जा हट की देवयानी इंटरनेशनल, एक ही आदमी है, रवि जयपुरिया, बहुत बड़ा आदमी है, वो इस तरह से फ्रेंचाइजी बिजनेस देता है। क्रीम बेल का उसका ब्रांड है। अगर केएफसी जाके बोलेगा रवि जयपुरिया को कि मुझे 500 दुकानें कल खोलनी है, रवि जयपुरिया क्या बोलेगा? कैपिटल है नहीं है? बोलेगा ये लो 1000 करोड़ में टेबल पे रख रहा हूं, मुझे बिजनेस दिखाओ, कितना प्रॉफिट दोगे ये बताओ। तो KFC, Pizza Hut now have easy access to capital। और क्या एडवांटेज होता है बड़े प्रोफेशनल पार्टनर्स के साथ काम करके? स्टारबक्स ने टाटा के साथ क्यों काम किया? बड़े क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग देना है, रिक्रूटमेंट करना है, लीगल रेगुलेशंस, अर्पण पहले बोल रहा था, वो सब फॉलो होंगे। मशीन बिजनेस समझना, ब्रांड समझना, ये सब इजी हो जाता है। Do you see the advantage? But disadvantage भी होना है। क्या disadvantage है? If you are working with fewer players, what is the risk you are carrying? Sir, they want to share the higher profit margins. Bargaining power is less. Sir, not easily replaceable. Absolutely true, Avinash. Absolutely true. Okay. I'll give you an example. 3-4 साल पहले ये कहानी हुई थी। मैकडॉनल्ड्स 2 पार्टनर के साथ काम करता है इंडिया में। उनका 2-4 साल पहले नॉर्थ और ईस्ट में देयर वाज अ गाय कॉल्ड बख्शी। क्या बख्शी था, याद नहीं आ रहा मुझे, गूगल करो। सम बख्शी, हाँ विक्रम बख्शी, जेडी बख्शी, डी से कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ही वाज फ्रेंचाइजी पार्टनर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट। मैकडॉनल्ड्स के 2 रीजन, मतलब 400-500 दुकानों का फ्रेंचाइजी पार्टनर था। छोटा आदमी, बड़ा आदमी, बहुत बड़ा, बिग बिजनेस, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैकडॉनल्ड्स के साथ कुछ इश्यू हो गया, जो प्रिंस अविनाश कह रहा था, कुछ इश्यू हो गया। मैकडॉनल्ड्स ने केस फाइल किया, बख्शी ने और 10 केस वापस फाइल कर दिए। 6-7 महीने तक लफड़ा चला था। 6-7 महीने तक मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि ये फ्रेंचाइजी पार्टनर हमारा नहीं है। उसने फिर भी मैकडॉनल्ड्स के नाम से 6-7 महीने तक दुकान चला दी, बोर्ड नहीं हटाया, पूरा केस चलता रहा। फ्रेंचाइजी को इतना कंट्रोल करते हैं ना ये लोग कि अगर एक बल्ब भी खराब होता है तो फ्रेंचाइजी पार्टनर डिसाइड करेगा या ब्रांड डिसाइड करेगा कि वो बल्ब कौन सा लगना? ब्रांड डिसाइड करेगा। नो वेज फ्रेंचाइजी। ब्रांड कब बनेगा भाई? ब्रांड कब बनेगा? कंसिस्टेंसी। कौन डिसाइड करेगा वो बल्ब क्या बदलेगा, कौन बदलेगा, किस ब्रांड का लगेगा? मदर ब्रांड, प्रिंसिपल ब्रांड बताएगा, वेंडर बताएगा, ब्रांड का मॉडल बताएगा, किस रेट पे लगना है, सब ब्रांड बताएगा। मदर ब्रांड KFC बताएगा, पिज़्ज़ा हट बताएगा, मैकडॉनल्ड्स। जहां पर वो एक बल्ब भी नहीं बदलने देते हैं, वहां पर बख्शी ने 6 महीने तक उसका सप्लाई रोक दिया, चिकन का और अंडे का और बन का। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे, हम कहीं और से मंगाएंगे। तो कुछ भी बिक रहा था 6 महीने तक उस दुकान से, कुछ भी बिक रहा था। और किस नाम से बिक रहा था? मैकडॉनल्ड्स के नाम से। तो ये इश्यू है, ठीक है। सो द अल्टरनेट बिजनेस मॉडल इज जो मॉन्जनीज और मिया उमर करते हैं, कि अगर उनको 500 दुकानें खोलनी है तो कितने पार्टनर खोजेंगे? 5 नहीं, 500 खोजनी है तो 500। वो एक ओनर को एक आउटलेट देते हैं। इससे उनके पास क्या चीज ज्यादा रहती है? बार्गेनिंग पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। लेकिन क्या चीज मुश्किल हो जाता है अगर 500 छोटे प्लेयर्स को मैनेज करना है तो? क्वालिटी एश्योरेंस, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी। फिर वही होता है जो इतिश्री कह रही थी कि कोई भी बल्ब लगता है
और मियोमर की दुकान से बर्थडे केक के साथ बर्थडे टोपी भी बिक रही है, बर्थडे टोपी बिकनी नहीं थी वो भी बिक रही है, और इरेजर भी बिक रहा है, और पेंसिल भी बिक रहा है। हाँ, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है फिर, छोटे छोटे प्लेयर वो अपनी मनमर्जी चल रही है, तो वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, इज दैट ओके? सो फ्रेंचाइजी पे इसलिए बहुत खेल है, फ्रेंचाइजी पे जब प्रोजेक्ट दूंगा मैं तब करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव मिड सेम के लिए है ये, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल क्या होता है? जो रिटेलर्स अपना खुद का प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, खुद का प्रोडक्ट बना के ब्रांड करके बेचते हैं। हाँ, ब्रांड करते हैं। एग्जाम्पल बता दो क्लास को प्राइवेट लेबल का, बिग बाजार के कुछ प्राइवेट लेबल बता दो यार। ऐश्वर्या को सुन लेते हैं। सर रिलायंस सेलेक्ट। रिलायंस सेलेक्ट, ओके। एंड रिलायंस, हाँ सर एफबीबी क्या? एफबीबी एक्चुअली ब्रांड, प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, वो रिटेल ब्रांड है। प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है उनका? सर अप्रैल में बहुत सारे हैं, डीजे&सी है, डीजे&सी है, बफेलो है उनका, बफेलो है उनका, ग्रोफर्स में है, मदर्स चॉइस है, ग्रोफर्स में होगा, मदर्स चॉइस मुझे पता नहीं, ग्रोफर्स में होगा। रिलायंस वालों का गुड लाइफ है, रिलायंस वालों का गुड लाइफ, बिग बाजार का गोल्डन हार्वेस्ट। हाँ, बिग बाजार का गोल्डन हार्वेस्ट, वेरी गुड स्नेहा, बिग बाजार का गोल्डन हार्वेस्ट है। ये सब होम ब्रांड्स होते हैं। रिटेलर ये ब्रांड क्यों बनाता है? डीजे&सी है, कोरियो है, पैंटालून के भी बहुत सारे हैं। एक मिलांस करके है, शायद पैंटालून का है, शॉपर स्टॉप का है, मिलांस करके। शॉपर स्टॉप का एक ब्रांड है, शॉपर स्टॉप का एक ब्रांड है, स्टॉप। In the e-commerce websites भी like जैसे कि मिंत्रा e-commerce websites भी अपना ब्रांड बनाते हैं। Yes. Raspberry and वो सब मिंत्रा का ब्रांड। फ्लिपकार्ट एश्योरेंस विल बी Assurance, no, Flipkart Assurance is not a product brand. नायका का भी खुद का ब्रांड होता है। क्या स्नेहा? नायका का भी खुद का ब्रांड होता है। नायका का खुद का ब्रांड है ना, नायका इज अ रिटेलर बट इट्स अ ब्रांड आल्सो, प्रोडक्ट ब्रांड। ओके, क्यों बनाते हैं ये ब्रांड? अजियो, करेक्ट इतिश्री, अजियो इज अ रिलायंस ब्रांड ना, या पैंटालून्स का है? रिलायंस ट्रेंड्स का है, करेक्ट, अजियो इज अ रिलायंस ट्रेंड्स ब्रांड। ओके, क्यों बनाते हैं ये ब्रांड? ब्रांड बनाना खर्चा या नहीं है? बफेलो बनाने में बिग बाजार को दिक्कत हुई होगी, नहीं होगी? हाँ सर, हुई होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है भाई, वरुण धवन को हायर करना पड़ा ना, और भैंसे लाने पड़े, तो दिक्कत है ना। ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है। क्यों बनाया फिर भी? व्हाट इज द एडवांटेज? सर अगर ब्रांड खड़ा हो गया तो उससे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। बहुत बढ़िया, एक तो मार्जिन ज्यादा है, और बार्गेनिंग पावर क्या हो गई? बार्गेनिंग पावर पूरा बढ़ गई। कल को अगर लीक ऊपर से लफड़ा होता है तो बिग बाजार के पास एटलीस्ट कुछ तो रहेगा बेचने के लिए, उनका अपना ब्रांड तो है ना बेचने के लिए, तो बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। फाइन, वी शैल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव फॉर दिस क्लास और